And globalization. The chapter name is Economic Liberalization and Globalization. It is our chapter number 16. Friends, let us see that it's part 1 of this chapter. When India became independent in 1947, जब 1947 में इंडिया independent हुआ, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. हमारे गवर्नमेंट ने एक रास्ता रखा किया क्या to get speedy economic development. It took over change. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 plans, one after the other. Monetary policy, fiscal policy, and industrial policy have been announced for this. Although many of these plans were completed, success was not actively measuring economic development in due sense. Hereby, government investigated the cause for failures and determined to give new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the past. In that regard, in industrial policy of 1991, industrial policy, such economic reforms were implemented which would strengthen economic development. Friends, let me ask a question. Why was it necessary for government of India to implement new industrial policy in 1991? Why was it necessary for government of India to implement a new industrial policy in 1991? Friends, when India became independent in 1947, the government accepted the path of planning to get speedy economic development. For that, many policies were made. To get speedy economic development. 5 plans, one after the other, monetary policy, fiscal policy, and industrial policies were announced for this. Although many plans were completed one after the others, एक के बाद दूसरे plans पूरे होते गए. Success was not attained in achieving economic development in true sense. जो इतना चाहिए था उतना सक्सेस नहीं मिला. जितना चाहिए था उतना सक्सेस नहीं मिला. Hereby, the government investigated the causes for failures and determined to give new form to different economic policies in order to get speedy development, in order to rectify the errors in the past. So that it was necessary to implement new industrial policy in 1990 और 1991 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई. क्यों लागू की गई? क्योंकि पहले इतना जितना डेवलपमेंट चाहिए था उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की. फ्रेंड्स, दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज डिवाइडेड इन 3 parts. Which one? Liberalization, privatization, and globalization. Liberalization, privatization, and globalization in these 3 parts. Liberalization, उदारीकरण. Second one, privatization, निजीकरण, प्राइवेटीकरण, and globalization, वैश्वीकरण. Friends, the first one we are going to see economic liberalization, आर्थिक उदारीकरण. What is economic liberalization? Government gradually reduces the restrictions and controls imposed on private sector. Government gradually reduces the restrictions and controls. Sorry friends. Government gradually reduces the restrictions and controls imposed on private sector and encouraging economic development.
दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या करती है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे और कंट्रोल्स लगा के रखे इस पे प्राइवेट सेक्टर को उसको क्या करती है, उसको धीरे धीरे क्या करती है, हटा देती है। एंड दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेजमेंट करती है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स, मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स related to liberalization which were made in the earlier period were as being follows। जो खास इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के स्टेप्स उठाए थे शुरुआती पीरियड में वो कुछ इस तरह से थे। नंबर 1, direct reservation for 18 industries। 18 industries were kept by government as reserved industries। For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated। 18 industries were kept under reservation by government, and other industries that compulsory registration was government permission was eliminated। कि गवर्नमेंट से किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हटा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। व्हिच वन, एरियाज अदर देन रेलवे, atomic energy and defense were open for the private sector। Friends, the third one है traditional compulsory registration for industry were cancelled। कि पहले नियम था क्या कि कंपल्सरी हर इंडस्ट्रीज को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दैट tradition of compulsory registration for industry was cancelled। Next, provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazard for the environment was cancelled। Friends, which was that? Provision to take government permission for setting up industries which do not. Friends, the tradition of compulsory registration for industries was cancelled। And here, now the fourth one, provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution are not hazardous for the environment was cancelled। You know friends, these were the primary steps। ये शुरुआत के स्टेप्स थे कि जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरेशन लागू करने के लिए किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया था? सबसे पहले फर्स्ट वन, यस, देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एक्टेड। अदर देन areas other than railway, atomic energy and defense were open for the private sector। Tradition of compulsory registration for industries was cancelled। Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazard for the environment was cancelled। Friends, we had both advantage and disadvantage of economic liberalization। Economic liberalization के कुछ फायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी। इकोनॉमिक लिबरेशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। लेट अस वी आर गोइंग टू सी एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन। कि इकोनॉमिक लिबरेशन से क्या फायदे हुए देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक unconcentrated development which led to increase in production। What happens friends? As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production। इकोनॉमिक लिबरेशन से क्या हुआ फ्रेंड्स कि प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका मिला। प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादा हुए। इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरेशन की पॉलिसी एंड और क्या हुआ, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ सो दैट ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन एम्पिचियस। ग्लोबल ट्रेडिंग, वर्ल्ड ट्रेडिंग चालू हुई। हाँ, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन एम्पिचियस एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। क्या हुआ फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेड, विश्व व्यापार में इंक्रीजमेंट। थर्ड वन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड बढ़ा है, व्यापार बढ़ा, so that there has increase in reserve of
फॉरेन टैक्सेस, विदेशी पैसे भी हमारे पास में बैठे हैं, ठीक है। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, waterways, these things improve due to liberalization। कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएगी काम करने के लिए, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज वो सब चाहिए, तो वो सब का भी यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ। लेट्स फ्रेंड्स बेसिक बात देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन के एडवांटेज क्या है? That's the first one. As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production। लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर को मौका मिला, और प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूअस क्या हुआ? बिल्कुल मतलब उसने जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन में उसके इंक्रीजमेंट हुआ। अब देखो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? ग्लोबल ट्रेडिंग होगी, ग्लोबल ट्रेडिंग है, ग्लोबल ट्रेडिंग होगी और ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, then has to increase in reserve of foreign exchange, विदेशी पैसे हमारे पास में ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने ग्लोबल ट्रेडिंग चालू की है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंप्रूव, कौन सा? रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, railways, these things will be improved due to liberalization। Friends, next है अपने पास में what are the disadvantage of liberalization। हमने देखा पहले क्या what are the advantage of liberalization, liberalization के फायदे क्या होगा। अभी हम क्या बात करें? the disadvantage of liberalization, liberalization के नुकसान क्या है? in spite of decreasing restrictions, in spite of decreasing restrictions, जो भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे उस रेस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया, तो भी है मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड, मोनोपोली को नहीं रोक सके। व्हाट इज मोनोपोली? इन चैप्टर नंबर 15 वी हैव सीन दैट, हमने चैप्टर नंबर 15 में देखा है कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक ही कंपनी का हो जाना, एक ही कंपनी का लीडिंग हो जाना, सब हर जगह पे एक ही कंपनी छा जाती है। इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शंस, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड, मोनोपोली नहीं रोकी हम। ओके नेक्स्ट, मतलब बड़ी कंपनी को भी फायदा हुआ, छोटी कंपनी को फायदा नहीं हुआ इसमें। As focus has only been paid on industrial sector, सारा ध्यान किस पे गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे गया, है ना। इंडिया हैज रिमेन बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, किस पे? इंडिया हैज रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारा ध्यान किस पे था? सारा ध्यान था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सारा ध्यान था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सारा ध्यान होने की वजह से जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। थर्ड फ्रेंड्स, हैज बीन इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, आवक की असमानता कमी हुई। जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्वाइन हुए या जिन लोगों ने इंडस्ट्री चालू की, वो लोगों की इनकम बढ़ गई, और जो लोग क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेबल रहे उनकी इनकम कम रही, उनकी इनकम बढ़ी नहीं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वन है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। देखो हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया, वहां तक बराबर था, तो हमारे देश का फायदा था। लेकिन क्या हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा हुआ और एक्सपोर्ट कम हुआ, है ना। फॉरेन डेट हैज इंक्रीज्ड, क्या हुआ फ्रेंड्स? फॉरेन डेट, विदेशी कर्जा बढ़ा, विदेशी कर्जा बढ़ गया हमारे ऊपर। फिर से बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिबरेशन, देखिए हमने। अब बात करते हैं किससे? डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरेशन। फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शंस, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक, मोनोपोली नहीं होती, ठीक है। एज फोकस हैज ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज बीन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड। थर्ड वन, देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, इनकम की असमानता बढ़ी हुई, आवक की असमानता बढ़ी हुई। And last one, because of increase in imports and increase in export, foreign debt has increased। कुछ बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या था? रेस्ट्रिक्शन हटाया लेकिन मोनोपोली नहीं रोकी, बड़ी कंपनी को फायदा हुआ। सेकंड वन, सारा ध्यान किस पे था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था। ऑल फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर कुड नॉट बी improved।
And third one, there has been increase in disparity of income. And last one, because of increase in imports and increase in exports, foreign debt has increased. Friends, we having seen that economic liberation. फिर उस पे कौन से उसके फीचर्स थे? नेक्स्ट ये उसके हमने लिखे क्या? Advantages of liberation and disadvantages of liberation. Now we are going to see, friends, the privatization. The new topic is privatization. Friends, at first we should discuss what is privatization. Privatization क्या होता है? नीचे क्या होता है? Privatization means the process. What is privatization? Privatization means the process in which the ownership and management of industrial units under the control of state control is handed over or transferred to private sector is called privatization. What is privatization, friends? Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. That clear? प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट की ओनिंग की जो भी फैक्ट्रीज हो या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो उसको क्या करने का, उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने का या ट्रांसफर करने का, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं. फ्रेंड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के दो मेथड्स हैं. व्हिच मेथड्स आता है? प्राइवेटाइजेशन के टू मेथड्स है. The first method is those areas which are reserved for public sector are open for private sector. वो एरियाज जो क्या थे, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, वो एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया. Secondly, friends, second one, state is the ownership of state-owned companies under its control and gives the charge of management to the private companies. Or state gives management in its own hand and gives the ownership to the private company. ठीक है फ्रेंड्स, दो तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है. पहला क्या था? Firstly, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector. Earlier thing हम देखा था पहले क्या, इकोनॉमिक लिबरेशन में आपने डिस्कस किया कि 18 इंडस्ट्रीज were reserved for government and others were open for private sector. Later we have seen that three sectors. Which one? Railway, atomic energy and railway, atomic energy and defense. These three sectors are remain for the public sector, for the government, and others were open for private sector. Here the sentence is what? Those areas which are reserved for public sector are open for the private sector. वो एरियाज जो पब्लिक सेक्टर के रिजर्व थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए. कौन से एरियाज? अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने रेलवे बेच दी. रेलवे आर गोइंग इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. रेलवे अभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रही है. रेलवे को प्राइवेट कंपनियां भी चलाएंगी. ये बातें हुई अपने. ठीक है, तो वो जो सेक्टर्स पब्लिक के लिए थे या पब्लिक सेक्टर के थे या गवर्नमेंट के थे, वो सेक्टर में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल देना. दैट इज प्राइवेटाइजेशन. राइट. सेकंड मेथड इज स्टेट कीप द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज. स्टेट कीप द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज. स्टेट की जो ओनरशिप की कंपनियां हों, उसमें स्टेट यानी सरकार खुद ही मालिक रहेगी. एंड अंडर इट्स कंट्रोल दे गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट. और जो मैनेजमेंट का चार्ज है उसमें कामकाज करने का चार्ज किसको दिया जाएगा? विल बी गिवन टू द प्राइवेट कंपनीज. तो प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा. मालिक कौन होगा? मालिक गवर्नमेंट होगी और मैनेजमेंट किसका होगा? प्राइवेट कंपनी का होगा. ठीक है. दूसरा क्या होगा? और स्टेट इज द मैनेजमेंट, या स्टेट को चलाएगा, सरकार को चलाएगी, और उसकी मालिक कौन हो जाएगी? उसकी मालिक हो जाएगी प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी को मालिक हो जाएगी और मैनेजमेंट कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगा. या क्या होगा? या मालिक गवर्नमेंट होगी और चलाने के लिए कौन होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा. ठीक है फ्रेंड्स, दिस वाज व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड हाउ प्राइवेटाइजेशन इज इम्प्लीमेंटेड. ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया हमने, और प्राइवेटाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एक्ट
एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की एडवांटेजेस क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेज फायदे। द फर्स्ट वन, there is increase in number of production units in industrial sector. What the hell? There is increase in number of production units in industrial sector. Industrial sector में क्या हुआ, production units, मैंने बताया छोटी फैक्ट्रियां ज्यादा चालू हुई, ज्यादा लोगों को चांस मिलेगा, है ना, छोटी फैक्ट्रियां, there is increase in number of production units in industrial area. Next, production has been increased in capital intensive, production has been increased, production बढ़ा, and consumer confidence due to प्राइवेटाइजेशन, और उपयोग में लेने वाली जो वस्तुएं थी उनका भी अमाउंट क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थर्ड वन, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। व्हाट दैट, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड, पब्लिक सेक्टर की काम करने की क्षमता बढ़ी है ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी सरकार की जो भी कंपनियां थी, सरकार की कंपनियों में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन को इंप्लीमेंट किया तो उनकी काम करने की क्षमता बढ़ गई, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई। फिर से देखते हैं एक बार फ्रेंड्स, व्हाट दैट एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के फायदे। द फर्स्ट वन, दैट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, प्रोडक्शन यूनिट्स ज्यादा हो गए। सेकंड वन, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, अब प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा होने से क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हां, इन कैपिटल इंटेंसिव, और उससे क्या हुआ, इनकम भी अच्छी होगी, हां, एंड कंज्यूमर कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं उनका भी अमाउंट बढ़ेगा, नेक्स्ट, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड, पब्लिक सेक्टर की काम करने की क्षमता क्या होगी फ्रेंड्स, बढ़ेगी, पब्लिक सेक्टर की काम करने की क्षमता बढ़ेगी, है ना, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज थी उसकी काम करने की क्षमता बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गया, इसलिए काम करने की क्षमता उसकी बढ़ी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या होते हैं, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या होते हैं, इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड, इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड, सारे के सारे इकोनॉमिक पावर किसकी, एक इंसान के पास में आ गए, पैसे किसके पास में आएंगे, एक इंसान के पास में आएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमिक पावर हैज बीन सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ व्हिच इविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज्ड, इसकी वजह से क्या हुआ, मोनोपोली बढ़ी, मोनोपोली एक ही जन का अधिकार है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड, कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली क्या हुआ फ्रेंड्स, ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव गॉट बेनिफिट, सिर्फ बड़ी फैक्ट्री को फायदा हुआ, बड़ी फैक्ट्रीज को फायदा हुआ, कॉटेज को फायदा नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, प्राइसेस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहे, प्राइस कंट्रोल में नहीं रही, क्यों नहीं रही, क्योंकि क्या हुआ, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो प्राइवेट सेक्टर जैसे चाहेगा वैसा वो अपने भाव रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्राइसेस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैज लीड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, से क्या हुआ, प्राइस राइज हो गई, है ना, इससे प्राइस राइज होना चालू हुआ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, है ना, लेकिन फिर से एक बार हम क्या करते हैं, एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। There is increase in number of production units in industrial sector. Second one, production has been increased in capital intensive and consumer commodity due to privatization. Third one, working capacity of private sector has improved due to privatization and public sector enterprise. Next one, disadvantage of privatization. Economic power has centralized as a result of privatization, because of which the evil of monopoly has increased. Cottage industry have not developed properly due to privatization. Only large industries have been benefited. And last third one, prices have not remained under control due to privatization. This has led to the problem of prices. Ever prices difference. Next topic is friends, globalization.
Our next topic is globalization. Right? We should see what is globalization. Globalization क्या होता है? Globalization is the process. Globalization is the process of connecting one country economy with the world economy. किसी भी एक देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? Which one? Globalization. As a result of which flow of goods, services and technology and labor is easily available in the world. As a result of globalization, what? Flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world. Following improvements have taken place due to globalization. खास कुछ नीचे के जो भी पॉइंट्स हैं, है ना? Following improvements have been taken due to globalization. Obstacles of trade between two nations have been removed. दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी डिफिकल्टीज, उसको क्या हुआ, उसको हटा दिया. Such a condition has been created. ऐसी कंडीशन created गई so that capital exchange can easily take place between two nations. दो nations के बीच में क्या हो, capital exchange, पैसे का लेन देन इजीली हो सके, ऐसी व्यवस्था करते हैं globalization. Third one, obstacle in the way of exchange of technology have been removed. टेक्नोलॉजी के लेन देन में जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी डिफिकल्टीज आते हैं उसको हटाने के लिए. Free exchange for labor. Free exchange of labor may be done among different nations of labor. दुनिया की जो भी कंट्रीज हैं उनमें फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर्स का लेन देन इजीली हो सके. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अभी फ्रेंड्स इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आते हैं. What? There are good effects, advantages and disadvantages. Don't know what. Mixed effects of globalization have been there on Indian economy. Many advantages and disadvantages are there, which are as follows. कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान हुए. देखते हैं क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए इसके फ्रेंड्स. Here, number 1, foreign direct investment. Foreign direct investment (FDI) is encouraged due to globalization. Foreign direct investment has been increased. Foreign direct investment क्या हुआ? बढ़ गया. क्यों? क्योंकि globalization का सिद्धांत. Second one, goods produced in the developed countries can easily be available and obtained due to globalization. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर बना हुआ जो भी मटेरियल है, अच्छा सामान, वो हम इजीली हमको मिल सकता है. डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वन है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कॉम्पिटिशंस एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कॉम्पिटिशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्रेंड्स इंटरनेशनल पे इंडिया जैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी खड़े हो सकते हैं. फ्रेंड्स डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है इसके? नंबर 1, expected success has not been attained. Expected success has not been attained in finding solution. जितना भी सॉल्यूशन चाहिए किसका? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी का जितना सॉल्यूशन चाहिए था उतना सॉल्यूशन नहीं मिला ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. Developing countries have not acquired proper benefits increase in export which which they should have acquired. जितना उनको फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिला इसको डेवलपिंग कंट्रीज को, है ना? और डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फायदा मिला. फ्रेंड्स large scale industries have acquired more benefit. Large scale industries को ज़्यादा फायदा मिला while small scale industries have obtained less benefit. जो छोटे इंडस्ट्रीज में उनको फायदा कम मिला. फ्रेंड्स we have discussed some of the things are here in chapter number 16. The first one was economic globalization, second one privatization, and third one globalization. We have discussed here. Friends, in the next part, in the next video, we will study that WTO, World Trade Organization. World Trade Organization we will discuss, and we will also discuss the objectives of World Trade Organization, functions of World Trade Organization, and the effect of World Trade Organization on India. And last point we will discuss sustainable development. Okay friends, now we are going to complete this video. Thank you friends.